Hello friends and welcome to Bimla Study One. Today I'll say about divisibility rule यानी कि भाज्यता के नियम। शुरुआत करते हैं जीरो से। जीरो एक ऐसी संख्या है कि सभी लोगों का कंफ्यूजन होता है। जीरो इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल, कभी कटता है कभी नहीं कटता है, कभी इंडिफिनाइट हो जाता है, कभी इंडिटरमिनेट हो जाता है। तो क्या है इसमें? So let us take an example. Suppose 15 को हम 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 5 आएगा। ये कैसे होता है? 3 से क्या गुना करें तो 15 आएगा। 3 से अगर 5 गुना करें तो 15 आएगा। वैसे ही 18 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ऐसा क्या आंसर आएगा कि 18 होगा। अगर 2 को हम 9 से गुना करें तो 18 आएगा। 2 को हम किससे गुणा करें तो 18 आएगा। 2 को 9 से गुणा करें तभी तो 18 आएगा। अगर 0 को 5 से भाग करना है तो उत्तर क्या आएगा? 5 से क्या गुणा करें तो 0 आएगा। 5 से अगर 0 गुणा करें तभी तो 0 आएगा। सो 0/5 इज इक्वल टू 0। 0/9 इज इक्वल टू 0। नॉट इट। आप देखते हैं 5। अगर 5 को हम 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? If you divide 5 by 0, then what will the answer? 0 को क्या गुणा करें तो 5 आ सकता है। सोचो शायद बड़ा संख्या होगा तो भी 5 आ सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसका इन्फिनिटियम। 9/0 इन्फिनिटी होगा। बड़ा संख्या आ सकता है, पता नहीं, इसलिए इन्फिनिटी। अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को भाग 0 से करेंगे तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि 0 से 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 से 1 गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 से 2 गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। ये तो पता नहीं क्या आएगा, इसलिए इट इज नॉट डेफिनाइट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट। It is not defined. Not defined. So 0 is divisible by all numbers except 0. Got it. Come to 1. 1 is not divisible by any number except 1। यानी कि 1 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 1 के अगर 9 से भाग करेंगे तो नहीं डिविजिबल होगा। अगर 1 को हम 1 से भाग करेंगे तो डिविजिबल हो जाता है। Now let us come to 2, 4. Divisibility of 2, 4, 8, 16. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? The last digit should be divisible by 2. 2 last digit should be divisible by 2. In case of 4, last 2 digits should be divisible by 4. In case of 8,
last 3 digits should be divisible by 8. In case of 16, last 4 digits should be divisible by 16. Similarly, in case of 32, last 5 digits should be divisible by 32, but it is not required. So you know this divisibility rule. Now how to apply. Suppose a question will be given divided by 4 and what will be the remainder. Suppose 2, 7, 8, 6, 5, 8, 9 is a number divided by 4 and what will be the remainder. You will take last 2 digits 89 divided by 4. So the answer will be 4. 4 to the 8. See how it is. 4 to the 8. 9. 4 to the 8. So 9 minus 8 is 1. 1 is the remainder. In this way you can get the remainder if you know the divisibility rule. Within a few seconds you can get the remainder. Now take for another example. Suppose 7, 6, 5, 4, 8, 0, 2, 5. Suppose you have to divide it by 8 and find out the remainder. Divide it by 8 and find out the remainder. And for 8 you will have to take 3 digit number, last 3 digit number. That means 0 to 5. So the remainder will be 1. Got it. Now you will be able to apply this and to find out the remainder. What more questions you can apply it in other competitive examination? Suppose if n is a 3-digit number, n is a 3-digit number and n square is equal to dash. So that the last number will be 74. Then find the possible values of n. Find the possible values of n. Now say, find the possible values of n. So n can be 2 or 8 because n square is 4. 2 square is 4, so can be 2, and 8 square is 64, so last digit is 4, so it can be 8 also. 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. That means n is an even number, यानी कि सम संख्या है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल होता है. इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2. That means n square must be divisible by 4. Suppose take an example 6. 6 is an even number. This is divisible by 2 as well as 4. Now this square, 6 square, that is 36. So this is divisible by 4. This is divisible by 4. That is why n square is divisible by 4. Let's take for another example. Suppose 8. 8, 64. This is also divisible by 4. So every even number means every even number 8 हो या 6 हो तो उसका स्क्वायर हरदम 4 से डिविजिबल होना ही है. तो 4 से डिविजिबल होगा तभी तो n स्क्वायर हो जाएगा. तो n स्क्वायर क्या हुआ? डिविजिबल बाय 4. तो 74 2 इवन नंबर, ये एक सम संख्या है. 74 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है. तो n ऐसा कोई संख्या नहीं है जो n स्क्वायर में 74 आएगा. n ऐसा कोई भी संख्या है क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं होता है. Now take for another example which usually comes in examination. 4 का रूल तो आप चलो पता है.
अब 4 का नियम जो पता है उसी के बारे में हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, सपोज n इज ए नंबर, n ऐसी संख्या लें और इसका n स्क्वायर, फिर लास्ट डिजिट क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर n स्क्वायर लिया जाए तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो n स्क्वायर। ओके, 0 हो सकता है, लास्ट का 0 हो सकता है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 है तो 0 हो सकता है। 1 हो सकता है लेकिन 2 कभी नहीं होगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता है, और 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 कभी नहीं होगा और 8 कभी नहीं होगा। लास्ट टर्म 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होगा, यानी कि ये अंक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, कैनॉट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। और ये सब हो सकता है ना। ये सब लास्ट डिजिट के लिए, और इसके बारे में देखते हैं लास्ट 2 डिजिट के बारे में, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। लास्ट 2 डिजिट, शुरुआत करते हैं 14 से। 14 नहीं होगा, क्योंकि 14 एक इवन नंबर है लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 14 लास्ट 2 डिजिट नहीं होगा। 24 हो सकता है, 34 नहीं होगा, 44 हो सकता है, 54 नहीं होगा, 64 हो सकता है, 74 नहीं होगा, 84 हो सकता है, 94 नहीं होगा, 96 हो सकता है। ठीक है, कई बार लोग पूछेंगे कि 12 तो हो सकता है, ये तो इवन नंबर है और 4 से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले बता चुका था कि लास्ट डिजिट में अगर 2 हुआ तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब लेते हैं 16 से। 16 हो सकता है, 26 नहीं होगा, 36 हो सकता है, 46 नहीं होगा, 56 हो सकता है, 66 नहीं होगा, 76 हो सकता है, 86 नहीं होगा, 96 हो सकता है। 16 सपोज 6 एक इवन संख्या है, इसका स्क्वायर किया जाए तो 36 होगा, तो ये 4 से डिविजिबल हो सकता है, इसलिए हम 36 को लास्ट डिजिट में ले सकते हैं। n स्क्वायर 36 में हो सकता है। Sometimes comes in exam, which one is the perfect square? Which one is the perfect square? Suppose 12, 94, 12, 96, 12, 93, 12, 92 is a number. इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो लास्ट डिजिट 3 और लास्ट डिजिट 2 है, ये तो पॉसिबल नहीं है, एलिमिनेट कर दो। बाकी रहा 94 और 96। 94 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 96 is the answer. Now if you find this video valuable for you, then share to your friends and of course don't forget to subscribe. Thank you.